Okay, last time, one second. Last time we talked about uh, mechanical ventilation and उसके types and उसमें हम लोगों ने डिस्कस किया एग्जॉस्ट सिस्टम, supply system, combination of exhaust and supply, and cleanup system. इसमें कोई डाउट है बिफोर वी मूव ऑन टू एयर कंडीशनिंग? No, ma'am. No, ma'am. ओके, ओके, तो आज we are going to talk about air conditioning. Air conditioning is basically controlling या conditioning air with respect to humidity, temperature, movement of air, odor, bacteria control, dust content, etc. So basically हमने जो जो factors पढ़े थे that affect ventilation, uh, air conditioning is basically controlling all of those things. And all this is done so that जो एयर फाइनली किसी स्पेस में आती है आफ्टर बीइंग कंडीशनड, इट इज़ सूटेबल फॉर फिजियोलॉजिकल रिक्वायरमेंट्स ऑफ द ह्यूमन बॉडी या फिर जो भी इंडस्ट्रियल प्रोसेस है उसका जो नीड है. Good afternoon, ma'am. गुड आफ्टरनून अशोक. आपको प्लेनम सिस्टम में डाउट था. I've actually started air conditioning, तो इस क्लास के एंड में I'll discuss it once. ठीक है, अभी I am going to continue with air conditioning. So basically हम एयर को एयर क्वालिटी, टेम्परेचर, ह्यूमिडिटी एंड फ्लो को कंट्रोल करते हैं टू सूट द रिक्वायरमेंट्स ऑफ द people occupying the space या फिर जो भी other needs होंगी in case of an industrial space of the machines or something, right? जैसे फॉर एग्जांपल किसी होटल के का जो वॉक इन फ्रीज़र होता है उसमें यू नीड डिफरेंट काइंड ऑफ टेम्परेचर कंट्रोल या एयर कंडीशनिंग दैन द सीटिंग एरिया ऑफ द रेस्टोरेंट. इसलिए इट इज़ इम्पॉर्टेंट टू मेंशन द इंडस्ट्रियल प्रोसेसेस एज वेल, क्योंकि एयर कंडीशनिंग सिर्फ इंसानों के लिए नहीं होती है. इट्स बेसिकली कंट्रोलिंग द एयर क्वालिटी एंड अदर थिंग्स इन द स्पेस बेस्ड ऑन वट एवर इट्स पर्पस इज. कोल्ड स्टोरेज में डिफरेंट चीज़ें मेंटेन की जाती हैं, बट दैट इज़ ऑल्सो एयर कंडीशनिंग. इट्स नॉट जस्ट द एसीज जो हम लोग घर में लगाते हैं. Now, what is the purpose of air conditioning? Air conditioning हम adopt करते हैं to fulfill the following purposes या requirements. First is human comfort. जो भी residents हैं, occupants हैं of the buildings, उसकी air conditioning system serves a limited number of people. Like for example, जो भी अगर एक फैमिली होम है तो द फैमिली मेम्बर्स, अगर so basically if it is a residence, तो एयर कंडीशनिंग का पर्पस होगा टू सूट द फिजियोलॉजिकल नीड्स ऑफ द
family members. Then second is to improve the quality of products in industrial processes, for example, artificial silk, cotton cloth, etc. In case of other industries, this helps in providing comfortable working conditions for the workers, resulting in the increase of production. So, in case of residences, it's just for the people. In case of industries, it's दो पर्पज से हो सकता है फॉर बेटर फंक्शनिंग ऑफ द प्रोसेस जो इंडस्ट्रियल प्रोसेस है उसके लिए फॉर द मशीन्स और जो भी उस प्रोसेस का रिक्वायरमेंट है उसके अकॉर्डिंग freezers, walk-in freezers, cold stores, these also fall in the same category. And also, it is also important to provide comfortable working conditions for the people working in the industry. So, two purpose hai. Then the third is to make commercial premises active and efficient, such as theaters, shops, banks, stores, restaurants, offices. तो ये जो स्पेसेस हैं इनको फंक्शनल बनाने के लिए इन्हें प्रॉपर एफिशिएंटली वर्क कराने के लिए यू नीड प्रॉपर वेंटिलेशन एंड कंट्रोल ओवर द एयर क्वालिटी एंड टेम्परेचर तो उसके लिए एयर कंडीशनिंग इज़ इम्पॉर्टेंट इन कमर्शियल स्पेसेस देन फोर्थ इज़ ड्यूरिंग ट्रैवल traveling के time whether it is by air by road railway or via water हर केस में इट इज़ इम्पॉर्टेंट कि एयर कंडीशनिंग प्रोवाइड की जाए व्हीकल्स में वेदर इट इज़ एन एयरप्लेन ट्रेन और पर्सनल व्हीकल बस वट उसमें प्रॉपर कॉम्पैक्ट एयर कंडीशनिंग प्रोवाइड करनी पड़ती है सो एज इट कैन फिट विद इन द body of the vehicle and this is used to control the air quality in the airplanes, railway passenger vehicles, road cars or buses and ships. So air conditioning का purpose हर जगह important होता है. It's not just residences, not just industrial, but also commercial and even in vehicles. Is this part clear? Yes, ma'am. All right. Yes. ओके तो एयर कंडीशनिंग में हमने एक चीज़ देखी है जो वन पार्ट दैट वी आर कंट्रोलिंग इज द एयर क्वालिटी ना एयर क्वालिटी हम कैसे कंट्रोल करते हैं आप बताओ आप लोग में से कोई बताओ कि एयर क्वालिटी कंट्रोल करने का मतलब उसमें कौन कौन सी चीज़ें हम कम या ज़्यादा करते हैं Ma'am, abundance of oxygen and lesser of impurities. राइट तो एयर क्वालिटी कंट्रोल करना मतलब उसमें से डस्ट बैक्टीरिया एनी काइंड ऑफ impure gases unsuitable gases fumes odors smoke ये सारी चीज़ें हटाना वो clean it should be clean air which is fit for breathing so इस process के लिए to be able to remove all these impurities from air we have to provide filters. So ACs, air conditioning systems have the following filters to be able to achieve this. जो filters होते हैं वो different एयर वेलोसिटीज़ मतलब एयर की स्पीड पे प्रॉपरली वर्क कर पाएँ ऐसे होने चाहिए
क्योंकि we also control the air speed in an air conditioner. तो we it should be workable under in the entire range जो air conditioner provide करता है उसमें. And they should not offer frictional resistance to the air passing through them. मतलब रेजिस्टेंस नहीं होना चाहिए, एज इन कुछ ऑब्स्ट्रक्शन नहीं होना चाहिए. देयर शुड नॉट बी एनी फ्रिक्शन फॉर द एयर पासिंग थ्रू द फिल्टर्स. ऐसा नहीं होना चाहिए कि जितनी अमाउंट ऑफ एयर जनरेट कर रहा है एयर कंडीशनिंग सिस्टम उतनी अमाउंट ऑफ एयर पहुंच नहीं पा रही है इनटू द स्पेस. तो दैट विल अमाउंट टू अ वेरी इनएफिशिएंट सिस्टम. उसका मतलब होगा कि हमें इनपुट और एनर्जी बहुत लगानी पड़ रही है अपने एयर कंडीशनिंग सिस्टम में, मतलब इन टर्म्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी एंड रिसोर्सेज, फ्यूल एक्सेट्रा, पर हमें उतना आउटपुट नहीं मिल रहा है. सो देयर शुड नॉट बी एनी फ्रिक्शनल रेजिस्टेंस टू द एयर पासिंग थ्रू द फिल्टर्स. Third is that they should not themselves cause contamination of incoming air. मतलब फिल्टर्स ऐसे नहीं होने चाहिए कि उसी से एयर कंटामिनेट हो जा रही है. वी आर रिमूविंग कार्बन डाइऑक्साइड, मोनोऑक्साइड, डस्ट एंड एवरीथिंग, बट वो फिल्टर्स से और गंदी हो जा रही है. तो दिस मीन्स कि हम जिस मटेरियल से जो फिल्टर्स बनते हैं दे शुड बी ऑफ सेफ मेड आउट ऑफ सेफ रॉ मटेरियल्स जो कि टॉक्सिक नहीं होते हैं फॉर ह्यूमंस. एंड ऑल्सो दे शुड बी क्लीन. इसलिए हम एयर कंडीशनर्स वगैरह क्लीन कराते हैं सो दैट हमारी जो एयर हमारे स्पेस में आ रही है इट डजंट गेट मोर कंटामिनेटेड बिकॉज ऑफ द फिल्टर्स. They should be capable of holding a moderate amount of dust on their surface without seriously affecting their efficiency of working. Now filters का काम है कि they will retain the dust, dirt, grime, bacteria within them and जो clean है वो pass होगी. Now अब ऐसा तो नहीं कर सकते कि every day we are going to take out all the filters and everything in the air conditioner system and उसे clean करेंगे every week. It's cleaned annually या maybe biannually depending on the scale of the system. तो इस तरह से फिल्टर्स को बनाना चाहिए कि they don't stop working just because there's a little amount of dirt on them. Otherwise it will be very difficult. उसका maintenance cost बहुत बढ़ जाएगा and it will be a big hassle. It should be possible to clean them easily, either manually or automatically. Now, obviously, हम जितनी भी frequency से उसे clean करते हैं air conditioning system को, they should be easy. The entire process should be easy, and या तो manual cleaning का accommodation होना चाहिए या फिर automatic cleaning भी होते हैं. Now there are even air conditioners for residences जो आते हैं which are self-cleaning. Do you know किस कंपनी के आता है? Which company has this kind of AC which cleans itself? No, ma'am. But I do remember seeing an ad, right? Like ad तो आता है definitely. So very strange ad. Hold on. Let me see. Higher का है AC. It has a self-cleaning inverter technology. Then it takes around 30 minutes. In dry mode or cool mode, it takes 15 minutes in fan mode to clean itself. Not the higher AC, but Samsung AC takes this long to clean. So there are more than one brands that make self-cleaning ACs for our residences as well now. So whether it is automatic or manual, it should be fairly easy to clean the system, the air conditioning system. Now there are 4 types of filters, right? एक तो होता है dry filter, second होता है viscous filter,
Then there is water sprays and electric precipitators. We'll go through all these one by one. सो चार टाइप के फिल्टर्स होते हैं. एक ड्राई फिल्टर होता है. दे आर मेड फ्रॉम क्लॉथ्स जैसे कि फेल्ट एंड आर डिस्कार्डेड जब वो गंदे हो जाते हैं. दिस इज दैट फिल्टर जो आप इफ़ यू हैव अ विंडो एसी एंड अगर आप जो फ्रंट ग्रिल होती है उसकी वो हटाओगे तो उसके अंदर एक ड्राई फिल्टर होता है विच यू कैन क्लीन योर सेल्फ. तो वो ड्राई फिल्टर होता है. इट्स मेड आउट ऑफ क्लॉथ. फेल्ट टाइप का कुछ फाइबरस क्लॉथ होता है एंड इट कैन बी डिस्कार्डेड और क्लीन्ड व्हेन इट्स डर्टी. एक्सक्यूज द नॉइज. बहुत तेज़ बारिश हो रही है एंड एवरीबडी इज गोइंग क्रेजी. एनीवेज, अगर शोर आ रहा है तो प्लीज़ इग्नोर दैट. Let me see if I can find an example viscous filter का. It will be easier to understand अगर उसकी image होगी. See, this is that viscous filter जो कि तो these are viscous filters जो कि मैट्स से बने होते हैं. इसमें इफ यू कैन सी तो इसमें ग्लास वूल लगी हुई है. इफ दिस ग्लास वूल इज कोटेड विद अ नॉन ड्राइंग ऑयल. जो जो भी डस्ट इसके थ्रू पास होती है वो ऑयल ट्रैप कर लेता है एंड दैट कैन बी रिमूव. ये
मैन्युअली भी रिमूव किए जा सकते हैं. देन यू ऑल्सो हैव ऑटोमेटिक टाइप ऑफ दीज विस्कस फिल्टर्स. Auto viscous filters, I don't want to go too much into detail कि कैसे वर्क करते हैं because it's not in your syllabus, but I am going to tell you very briefly कि किस तरह से work करता है so that you know what all these things are. Yes, ma'am. And या तो इस तरह से हो सकते हैं जैसे ये है यूनिट टाइप के हो सकते हैं या ऑटोमेटिक भी हो सकते हैं. एंड इन द यूनिट टाइप जो मैट होती है दिस जो ब्लूइश ग्रे मैट आप देख सकते हो दैट इज रिमूव्ड, वॉश्ड एंड इट कैन बी रिकॉइल्ड एंड पुट बैक इन प्लेस. एंड जो ऑटोमेटिक होता है उसमें एक एंडलेस चेन होती है जो मैट के ऊपर मूव कर रही होती है. एंड जो लोअर पॉइंट होता है उसके पास एक ऑयल बाथ रखी होती है तो वो चेन कॉन्स्टेंटली मूव होती रहती है एंड इट कीप्स गेटिंग क्लीन एंड वापस से वो ऑयल में डिप होती है फिर इट कीप्स मूविंग. इस तरह से वर्क करता है. फिर देयर आर वाटर स्प्रेज. वाटर स्प्रे इसमें एयर होती है वो वाटर के स्प्रे के थ्रू पास होती है एंड जो ड्रॉप्स ऑफ वाटर होते हैं वो डस्ट पार्टिकल्स ट्रैप करके नीचे गिर जाते हैं. जो हवा होती है वो साफ होके आगे चली जाती है. सो जो एयर फोर्स मतलब फ्लो कर रही होती है फोर्सफुली सिस्टम में, एयर कंडीशनिंग सिस्टम में, इफ़ इट इज़ डर्टी एंड इट हैज़ डर्ट इन इट तो जब वो इस वाटर के स्प्रे से पास होती है तो इट बिकम्स फ्री ऑफ डस्ट पार्टिकल्स एंड एवरीथिंग क्योंकि जो वाटर स्प्रे होता है वो डस्ट को ट्रैप करके नीचे गिरा देता है. आई कांट फाइंड द प्रॉपर इमेज क्योंकि उसकी वर्किंग नहीं है इसमें. देन यू हैव इलेक्ट्रिक प्रेसिपिटेटर्स. ये बेसिकली जो केमिकल्स होते हैं या जो मिनरल डस्ट होती है जो बहुत फाइन होती है, फाइनर टू बी रिमूव फ्रॉम वाटर या इवन ड्राई या ऑयल के थ्रू भी नहीं क्लीन होती है. टू क्लीन दैट जो एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रिक फील्ड इज डेवलप्ड एंड जो डस्ट पार्टिकल्स होते हैं उनको इस इलेक्ट्रिक फील्ड से सब्जेक्ट किया जाता है तो दे बिकम नेगेटिवली चार्ज्ड, दे बिकम पॉजिटिवली चार्ज्ड एंड जो नेगेटिव इलेक्ट्रोड्स लगे होते हैं उनकी तरफ अट्रैक्ट होते हैं एंड दे आर रिमूव्ड फ्रॉम द एयर. फिर जब इलेक्ट्रोड पे बहुत ज़्यादा मिनरल पार्टिकल्स जमा हो जाते हैं तो उसे क्लीन कर दिया जाता है. बेसिकली एयर जो होता है उसे पॉजिटिवली चार्ज किया जाता है and then it gets attracted towards the negative electrodes जो सिस्टम में लगे होते हैं. so एयर निकल जाती है डस्ट पार्टिकल्स अलग हो जाते हैं. that's how these 4 filters work. कोई doubt? No, ma'am. No, ma'am. okay. समझ में आया? Yes, ma'am. okay. Yes, ma'am. फिर हम आते हैं हीटिंग पे. एयर कंडीशनिंग सिस्टम्स में हीटिंग कैसे होती है. एंड रिमेंबर डोंट
गेट कंफ्यूज कि एयर कंडीशनर मतलब ठंडा ही करता है एंड हीटिंग के लिए हीटर लेना पड़ेगा. इट्स नॉट इंटायरली ट्रू. जो हम लोग घर में देखते हैं वो समर एसीज होते हैं, बट देयर आर ऑल्सो एसीज, एयर कंडीशनर्स दैट वर्क इन अ वे कि they also provide heating as well as cooling depending on the weather. जैसे आपके कार में जो एसी लगे होते हैं, एयर कंडीशनिंग सिस्टम, दे ऑल्सो प्रोवाइड हीटिंग एंड दे ऑल्सो प्रोवाइड कूलिंग. सो एंड स्पेशली इन कमर्शियल स्केल बिल्डिंग्स जैसे मॉल्स हुए या मेट्रो स्टेशंस हुए, उसमें व्हाट हैपेंस इज कि यू आर नॉट गोइंग टू इंस्टॉल टू सेपरेट सिस्टम्स, एक हीटिंग का एक कूलिंग का. तो यू इंस्टॉल HVAC सिस्टम्स, हीटिंग वेंटिलेशन एंड एयर कंडीशनिंग सिस्टम्स, जो बेसिकली दोनों फंक्शंस प्रोवाइड करते हैं. सो इन विंटर्स इट्स इम्पॉर्टेंट कि हम लोग स्पेस में स्लाइटली हीटेड एयर प्रोवाइड करें. जो हम लोगों ने डिस्कस किया था कि जो टेम्परेचर डिफरेंस है, इट शुड बी हाउ मच, मतलब हाउ डू वी नो कि अच्छा वेंटिलेशन सिस्टम है. तो जनरली समर्स में 20 डिग्री सेल्सियस एंड विंटर्स में 22 डिग्री सेल्सियस इज कंफर्टेबल इनफ. तो स्लाइटली heated air is to be provided in a building during winters, and this will also compensate the heat loss from the room. मतलब जो भी हम लोगों ने heat exchange in buildings जो सबसे पहला टॉपिक पढ़ा था, उसमें हीट एक्सचेंज जब होती है किसी बिल्डिंग में से बिकॉज ऑफ हीट लॉस थ्रू द वॉल्स, थ्रू द रूफ, थ्रू विंडोज, इस तरह से जो भी हीट लॉस हो रहा है उसे भी कॉम्पनसेट करेगा. इससे जो भी इनकमिंग एयर होती है इनटू द स्पेस, इट इज कैरीड थ्रू वार्म एयर फर्नेसेस या कॉइल्स, जिसमें हॉट वाटर या स्टीम सर्कुलेट हो रही होती है. तो ये जो ट्यूब्स होती हैं कॉइल्स, दीज आर हीटेड क्योंकि इसके अंदर हॉट वाटर या स्टीम सर्कुलेट हो रही होती है. एंड जब एयर इस इन कॉइल्स के ऊपर से पास होती है तो इट बिकम्स वार्मर, एंड फिर जो इनकमिंग एयर होती है वो गर्म होकर स्पेस में आती है. फिर वी कम टू कूलिंग. Cooling is basically what happens in summers is कि it's important कि हम cool air supply करें in the space. So it has to be cooled before it goes into the space. तो कूलिंग दो तरह से हो सकती है, या तो मैकेनिकल रेफ्रिजरेशन से हो सकती है या फिर वाटर स्प्रे या इवन कोल्ड वाटर के थ्रू हो सकती है. मैकेनिकल रेफ्रिजरेशन सिस्टम में एक कूलेंट या रेफ्रिजरेंट लिक्विड होता है जो वॉलेटाइल होता है, या इवन इट मे इवन बी फ्लैमेबल, मीनिंग इजी टू कैच फायर, जैसे क्लोरोफॉर्म, मिथाइल क्लोराइड, इस तरह के केमिकल्स जो होते हैं जो वॉलेटाइल होते हैं एंड फ्लैमेबल होते हैं.
या फिर कार्बन डाइऑक्साइड या सल्फर डाइऑक्साइड भी यूज़ कर सकते हैं जो फ्लैमेबल नहीं होते। तो इसमें ये जो रेफ्रिजरेंट होता है इसको कंप्रेस करते हैं पहले। तो जब प्रेशर बढ़ता है तो टेम्परेचर डिक्रीज़ होता है। दिस इज़ अ वेरी बेसिक फिज़िक्स की थ्योरी कि जब भी हम प्रेशर बढ़ाते हैं तब टेम्परेचर डिक्रीज़ होता है। जब प्रेशर कम होता है तो टेम्परेचर इंक्रीज़ होता है। इसलिए जाली वगैरह इंडिया में बहुत लगती हैं। तो ये जाली के थ्रू जब हवा छोटे-छोटे होल्स में से कंप्रेस होके आती है तो ठंडी होके आती है। Yeah, that I digress. Okay, so this refrigerant जो होता है whether it is methyl chloride, chloroform, carbon dioxide, sulfur dioxide, इसे कंप्रेस किया जाता है, कूल किया जाता है एंड देन इसे एक्सपैंड होने दिया जाता है एंड फिर इसे कॉइल्स के थ्रू पास होते हैं। अगेन कॉइल्स के थ्रू पास होता है एंड ऐसी कॉइल्स जो होती हैं they absorb heat from the incoming air. यहाँ पे if you can see ये रेफ्रिजरेंट है, ये रेफ्रिजरेंट फ्लो हो रहा है इस डायरेक्शन में, राइट। फिर यहाँ पे ये कूल डाउन होता है इन द इवेपोरेटर एंड खैर इतना डिटेल में नहीं जाना है। यू जस्ट हैव टू अंडरस्टैंड कि ये जो रिकूलेंट होता है या रेफ्रिजरेंट होता है इसे कॉइल्स के थ्रू पास करते हैं आफ्टर कंप्रेसिंग इट, कूलिंग इट डाउन, देन एक्सपैंड होने देते हैं, फिर कॉइल्स में पास करते हैं। तो जो भी इनकमिंग एयर होती है, जो बाहर से हम हवा लेते हैं, उसकी हीट को ये एब्जॉर्ब कर लेता है बिकॉज दिस इज कूल। और जो ठंडी चीज़ होती है इट ऑलवेज एब्जॉर्ब्स हीट, क्योंकि हीट हमेशा इक्विलिब्रियम सर्च करती है। इफ एनर्जी ऑलवेज सर्चेस फॉर इक्विलिब्रियम। तो देन आफ्टर द एयर कूल्स डाउन, क्योंकि उसकी हीट एब्जॉर्ब हो गई है बाय द रेफ्रिजरेंट, इट इज सप्लाइड इनटू द स्पेस और आपको ठंडी हवा का एहसास। फिर वाटर स्प्रे सिस्टम से क्या होता है कि जो हवा आ रही होती है उसको अगेन ठंडे पानी के स्प्रे से पास कराया जाता है एंड ये जो स्प्रे वाटर है इट इज़ समटाइम्स कूल्ड बाय आइस, पर वो थोड़ा महंगा प्रोसेस हो जाता है टू गेट द आइस हैज़ टू रिमेन फ्रोजन एंड एवरीथिंग। इट्स अ वेरी एक्सपेंसिव प्रोसेस। इसलिए ये सिर्फ ऑडिटोरियम्स वगैरह के लिए यूज़ होता है जहाँ जो कभी कभी ही यूज़ होते हैं। नाउ कोल्ड वाटर सिस्टम में जो इनकमिंग, तो ये वाटर स्प्रे सिस्टम अलग था। नाउ वी टॉकिंग अबाउट द थर्ड ऑप्शन जो है कोल्ड वाटर सिस्टम। इसमें जो गर्म हवा आ रही होती है उसे ऐसी कॉइल्स के चारों तरफ मूव कराया जाता है जो ठंडा पानी कैरी कर रही है। नाउ बिकॉज देर इज कूल वाटर इनसाइड द कॉइल्स, तो वो कॉइल्स ठंडी है एंड दे आर ट्राइंग टू एब्जॉर्ब हीट एंड तो एयर में से वो हवा एब्जॉर्ब करती हैं, सॉरी हीट एब्जॉर्ब करती हैं एंड देन दैट कूल्ड डाउन एयर is passed into the supplied into the space. So we're trying to absorb heat from the warm air जो बाहर से आती है either through coolants or through refrigerant or through a spray of cold water या फिर cold water in coils. मैम हाँ मैम मुझे समझ नहीं आया कि व्हाट यू आर एक्सप्लेनिंग मीन्स इस डायग्राम में, मतलब जो हमारा दोनों ही कूलिंग प्रोवाइड करता है वार्म एंड कूल, वो आप एक्सप्लेन कर रही हैं। दो डिफरेंट प्रोसेसेस हैं। अगर हमें वार्म एयर चाहिए इन द स्पेस तो उस कॉइल्स में से जो कॉइल्स हैं
उसमें हॉट वाटर पास होगा। अगर हमें कूल एयर चाहिए तो उन कॉइल्स में से कूल वाटर पास करा सकते हैं। वो है दिस इज़ इससे कंफ्यूज मत होना क्योंकि इसमें एक टाइम पे दोनों चीज़ दिखाई है। होल्ड ऑन। Maybe this will make it a little clearer. लेफ्ट हैंड साइड है विंडो एसी एंड इसमें सिर्फ कूलिंग समझना, ठीक है? ओनली ट्राई टू अंडरस्टैंड द कूलिंग पार्ट। लेफ्ट हैंड साइड इज आर इनसाइड रूम एंड राइट हैंड साइड आउटडोर है इन दिस विंडो एसी वाले डायग्राम में। तो व्हाट्स हैपनिंग इज कि बाहर से ठंडी सॉरी हवा आ रही है, राइट? एंड देन इट इज़ पास्ड थ्रू दीज कॉइल्स। ये जो येलो कलर की कॉइल्स हैं इसके थ्रू पास होती है। जिसमें जो कंडेंसर्स हैं, कंडेंसर्स एज इन इसके अंदर ठंडा पानी है, सो इट कूल्स डाउन दैट एयर और फिर वो एयर आपके स्पेस में आती है। एंड स्प्लिट एसी में दोनों यूनिट्स अलग अलग होते हैं, दैट्स द ओनली डिफरेंस। पर आपको बेसिकली ये समझना है कि जो एयर अंदर आ रही है वो फिर पहले तो आपने अगर विंडो एसी बाहर से देखा होगा तो इट हैज़ दिस ब्लैक कलर का बैक जाली जैसी behind it which is one filter, dry filter. मैम विंडो एसी में बैक साइड में वैसे जाली जैसा होता है ब्लैक, एंड स्प्लिट एसी में उसका जब आगे का वो हटा हो कवर देन वहां पे लगा होता है। स्प्लिट एसी में जो आउटडोर यूनिट होता है उसमें फ़ैन दिख रहा होता है आपको, उस फैन के पीछे अंदर होता है, मतलब फिल्टरिंग सिस्टम उसी में लगा होता है आउटडोर वाले पार्ट में। बेसिकली आपके एसी में अलग अलग पार्ट्स होते हैं। एक इवेपोरेटर होता है, कंप्रेसर होता है, कंडेंसर होता है, एंड देन एक्सपेंशन वाल्व होता है एंड रेफ्रिजरेंट होते हैं। एंड दिस इज द फर्स्ट पार्ट जिसमें वॉलेटाइल रेफ्रिजरेंट है, राइट? ना जो इवेपोरेटर होता है वो बेसिकली एक हीट एक्सचेंजर कॉइल होती है, मीनिंग उसके थ्रू हीट एक्सचेंज होती है जो हीट कलेक्ट करता है फ्रॉम द इंटीरियर ऑफ अ रूम बाय रेफ्रिजरेटिंग गैस। ये इवेपोरेटर होता है जिसमें एक रेफ्रिजरेंट मूव हो रहा होता है विच एब्जॉर्ब्स हीट एंड इवेपोरेट्स इनटू अ गैस, क्योंकि ये वॉलेटाइल होता है। सो वॉलेटाइल लिक्विड्स जैसे आपका सैनिटाइज़र होता है, इट्स वॉलेटाइल। आपके हाथ की हीट से, बॉडी हीट से इट इवेपोरेट्स वेरी क्विकली, वेरी वेरी क्विकली, राइट? तो इट एब्जॉर्ब्स हीट। वैसे ही रेफ्रिजरेंट एक जो कॉइल में मूव हो रहा होता है, इट एब्जॉर्ब्स हीट एंड देन इवेपोरेट्स इनटू अ गैस। फिर ना जो गैस बनी वो रेफ्रिजरेंट विच हैज़ नाउ हीटेड अप और गैस में कन्वर्ट हो गया है, वो कंप्रेसर में जाके कंप्रेस होता है, जैसे नाम है उसका, इट विल बी कंप्रेस्ड इनटू अ स्मॉलर वॉल्यूम। तो ये आउटडोर यूनिट या बाहर की तरफ प्रोवाइडेड होता है।
फिर कंडेंसर जो होता है ये एब्जॉर्ब करता है जो इवेपोरेटेड रेफ्रिजरेंट कंप्रेसर से कंप्रेस होके आ रहा है एंड देन कन्वर्ट्स इट बैक इनटू अ लिक्विड और उसको बाहर की गर्मी में निकाल देता है। ठीक है। नाउ द एक्सपेंशन वॉल, जो दोनों कॉइल्स जो आपको दो कॉइल अलग अलग दिख रही हैं इसमें, उसके बीच में प्रोवाइड किया जाता है जो इवेपोरेटर की कूलिंग कॉइल होती है, कंडेंसर की हीटिंग ऑयल कॉइल होती है, उसके बीच में होता है एंड इट कंट्रोल्स कि कितना रेफ्रिजरेंट मूव करेगा टुवर्ड्स द इवेपोरेटर। ना विंडो एसी में ये तीन कंपोनेंट्स एक छोटे से मेटल बॉक्स में लगे होते हैं इन द विंडो ओपनिंग, राइट। तो हमारा जो एसी है उसमें ये सारी चीज़ें अंदर हैं ना। कैसे वर्क करता है, जब हम एसी ऑन करते हैं एंड लेट्स से कि हमने 20 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर सेट किया, ठीक है, तो देयर इज़ अ थर्मोस्टैट, मीनिंग एक तरह से थर्मोमीटर होता है जो एयर का या एटमॉस्फेयर का टेम्परेचर डिटेक्ट करता है। वो डिटेक्ट करेगा कि देयर इज़ अ डिफरेंस इन द करंट टेम्परेचर ऑफ द रूम एंड द डिज़ायर्ड टेम्परेचर। मतलब अभी लेट्स से कि 28-30 डिग्री सेल्सियस है एंड आई वांट इट टू बी 20, सो इट विल अंडरस्टैंड कि अभी 20 है एंड आई नीड टू, द एसी नीड्स टू कूल इट डाउन टू 10 डिग्रीज का डिफरेंस, मीनिंग 20 करना है उसे। फिर जो गर्म हवा है आपके स्पेस में, वो एक जो ग्रिल होती है इंडोर यूनिट में, उसके थ्रू अंदर जाएगी, मीनिंग आपके विंडो एसी में जो फ्रंट में बड़ी ग्रिल होती है वो, और अगर स्प्लिट एसी है तो उसके नीचे ग्रिल होगी, उसके थ्रू वो सक इन करेगा। ठीक है। फिर उसके बाद वो हवा एसी के अंदर गई एंड जो कूलेंट रेफ्रिजरेंट कॉइल्स में मूव कर रहा है इवेपोरेटर में, उसके थ्रू उसके ऊपर से निकली, राइट। एंड नाउ उसकी हीट की वजह से रेफ्रिजरेंट वार्म अप होगा एंड क्योंकि वो वॉलेटाइल है तो वो गैस में या फ्यूम्स में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है। वो एक हॉट गैस बन जाता है। फिर वो एयर में से हीट रिमूव हो गई क्योंकि वो तो एब्जॉर्ब हो गई एंड फिर क्योंकि वो इवेपोरेटर कॉइल है तो जब वो मॉइस्चर को भी एब्जॉर्ब करता है उसमें से, तो इससे रूम की ह्यूमिडिटी कम होती है ना। अब जो वो गैस रेफ्रिजरेंट हॉट गैस बन गया है वो कंप्रेसर में से पास होगा। कंप्रेसर मतलब वो उस गैस को कंप्रेस करेगा, मतलब उसका वॉल्यूम कम करेगा बाय इंक्रीजिंग प्रेशर। प्रेशर बढ़ने से क्या होता है कि टेम्परेचर कम होता है उस किसी भी चीज़ का। दैट्स व्हाट अ कंप्रेसर डज। एंड नाउ इट हैज़ कंप्रेसर में के थ्रू पास होके वो हॉट गैस अब थोड़ी कूल डाउन हो गई है एंड इट हैज़ टर्न इनटू अ लिक्विड, क्योंकि इसको हमने कंप्रेस कर दिया एंड जब गैस के दूर दूर वाले मॉलिक्यूल्स कंप्रेस होके पास आएंगे तो वो लिक्विड बन जाएगा वापस से। दिस इज़ ऑल बेसिक, वेरी बेसिक फिजिक्स। अगर कहीं पे भी नहीं समझ में आए तो प्लीज़ आस्क मी, ओके। फिर कहाँ पे थे? हवा गैस हॉट थी, कूल डाउन थ्रू द कंप्रेसर, टर्न इनटू अ लिक्विड। राइट, कंप्रेसर। फिर दिस हाई प्रेशर गैस या लिक्विड रीचेस द कंडेंसर, जो कि इवेपोरेटर का एग्जैक्ट ऑपोजिट होता है। ये भी कॉइल्स हैं, कॉइल्स होती हैं जिसमें जो हॉट एयर होती है उसे कंडेंस कर देता है इनटू अ लिक्विड। हॉट एयर जो कंप्रेस हो गई थी उसको
it cools down even more further, and जो पीछे मेटल फिन्स लगे होते हैं या आउटडोर यूनिट में जो फैन लगा होता है उसके थ्रू जो हॉट एयर होती है, जो हीट होती है, वो एटमॉस्फेयर में निकल जाती है। एंड क्योंकि कंडेंसर कॉइल्स बाहर की तरफ होती है, राइट, या तो विंडो एसी में पीछे की तरफ होगी या आउटडोर यूनिट में होंगी, तो उसको कूल डाउन करके, मतलब बेसिकली आफ्टर द कंप्रेसर से लेके अभी तक वी आर जस्ट ट्राइंग टू कूल डाउन द हॉट एयर इन स्टेप्स, राइट। ओके, कहाँ पे थे हम? कहाँ पे थे? राइट, हम उसे कूल डाउन करने की कोशिश कर रहे हैं इन स्टेप्स। नाउ कंडेंसर के पास जो फैन लगा होता है या फिन्स लगे होते हैं, उसके थ्रू उसकी हीट को डिसिपेट किया जाता है इनटू द एनवायरनमेंट, एंड विद दिस जो रेफ्रिजरेंट होता है इट लूजेस इट्स हीट, एंड कंडेंसर से निकलते निकलते इट बिकम्स अ कूल्ड आउट लिक्विड, एंड फिर ये एक्सपेंशन वाल्व में से जाता है, विच इज़ एक्चुअली अ टाइनी वाल्व, एक छोटा सा होल होता है कॉपर ट्यूब में, कॉइल्स में ही, जिसके थ्रू जब ये लिक्विड पास होता है इट कम्स बैक इन फॉर्म ऑफ अ गैस टू द स्टार्टिंग पॉइंट जो हमारा इंडोर्स था। सो बेसिकली इस तरह से वर्क करते हैं। आई डोंट नो क्या समझ में आया? इज दिस मोर क्लियर? यस मैम, थोड़ा बहुत। देखो, ऑल यू नीड टू अंडरस्टैंड इज कि अभी हम लोग एक्चुअली समर एयर कंडीशनिंग सेपरेटली और समझेंगे, विंटर एयर कंडीशनिंग भी सेपरेटली समझेंगे, इट विल कम लेटर। अभी सिर्फ ये समझना था कि कूलिंग किस किस तरह से हो सकती है, कौन कौन से प्रोसेसेस हैं। एक तो रेफ्रिजरेंट है जो हम लोगों ने अभी देखा, एक है वाटर स्प्रे के थ्रू जिसमें ठंडे पानी का स्प्रे डाला जाता है जिसके थ्रू एयर कूल डाउन होती है, या फिर कूल वाटर से होता है जो कॉइल्स में कूल वाटर पास किया जाता है। बेसिकली अभी ये समझना है, जो पूरा प्रोसेस है एयर कंडीशनिंग का वो बाद में समझ में आएगा व्हेन वी हैव अंडरस्टूड ह्यूमिडिफिकेशन एंड डीह्यूमिडिफिकेशन, क्योंकि जो हम लोग कंप्रेसर, कंडेंसर, इवेपोरेटर की बात कर रहे हैं, इनका पर्पस अभी हमने समझा ही नहीं है, इसलिए थोड़ी डिफिकल्टी हो रही है समझ में। यस मैम। Yes, ma'am. तो Yes, ma'am. अभी I'm going to stop here, and next time humidification, dehumidification and दोनों सीजन्स की एयर कंडीशनिंग समझेंगे। ओके, नेक्स्ट टाइम क्या, कल क्लास है, कल इट्स अ लैब, तो हाँ, we'll do this tomorrow. Yes, ma'am. Okay, thank you. मैम Thank you, ma'am. थैंक यू मैम। नहीं, होल्ड ऑन इशरत को क्लीनर सिस्टम समझना था। 2 मिनट्स। क्लीनर सिस्टम में क्या डाउट था इशरत कि कुछ भी नहीं समझ में आया? यस मैम, मैम उससे का मुझे याद ही नहीं आ रहा था कि आपने एक्सप्लेन कैसे किया था, मतलब क्या एग्जांपल देके। अच्छा, ओके। देखो, क्लीनर सिस्टम इज़ वेरी सिमिलर टू एयर कंडीशनिंग, क्योंकि उसमें हम एयर को फिल्टर भी करते हैं। बाकी सब में हमने देखा कि वी आर जस्ट ट्राइंग टू
वेंटिलेट द स्पेस, हम एयर सर्कुलेशन मेंटेन करने की कोशिश कर रहे हैं और टेम्परेचर मेंटेन करने की कोशिश कर रहे हैं इन सम एग्जांपल्स। बट प्लीनम सिस्टम एक ऐसा था जिसमें वी वर एक्चुअली ट्राइंग टू कंट्रोल द एयर क्वालिटी एज वेल। तो इसमें जो भी फ्रेश एयर है हम अपनी इंटीरियर स्पेस में लेके आते हैं, राइट। एंड जो रूम की एग्जिस्टिंग एयर है, जो यूज्ड एयर है जिसमें कार्बन डाइऑक्साइड, डस्ट वगैरह सब चीज़ें हैं विच वी डोंट वांट इन द रूम एनी मोर, उसको हम एक्सट्रैक्ट भी कर लेते हैं, बाहर निकालते हैं बाय आउटलेट फैंस या एग्जॉस्ट्स। एंड फिर जो इनकमिंग एयर है उसको हम स्क्रीन्स या फिल्टर्स के थ्रू पास करते हैं या इवन अ स्ट्रीम ऑफ वाटर। तो उससे क्या होता है, वो क्लीन हो जाती है एंड इट कूल्स डाउन। या इवन यू कैन ऐड ओजोन विच वॉज अ वेरी बैड प्रोसेस। अगर आप लोगों ने एनवायरमेंटल साइंस में स्कूल में पढ़ा होगा कि एयर एसीज से जो सी एफ सी गैसेज होती हैं, सी एफ सी एस होती हैं, दे आर वेरी बैड फॉर द इन्वायरमेंट, एसीज आर बैड फॉर द इन्वायरमेंट। इट वॉज दिस, क्योंकि इसमें ओजोन यूज़ होता है विच इज़ रियली नॉट गुड, ऑब्वियसली पढ़ चुके हैं आप लोग। बट यही प्रोसेस होता है कि जो इनकमिंग एयर होती है इसमें हम इसे फिल्टर करते हैं बाय पासिंग इट थ्रू स्क्रीन्स, पासिंग इट थ्रू कोल्ड वाटर का स्प्रे या पासिंग इट थ्रू ओजोन टू कूल इट डाउन। इससे हम ह्यूमिडिटी, टेम्परेचर, क्वालिटी सारी चीज़ें कंट्रोल कर सकते हैं। एंड इससे हम जो इनलेट है एयर का वो ऊपर से भी हो सकता है, नीचे भी हो सकता है, क्योंकि हम बहुत फोर्सफुली हवा को पास कर रहे हैं इनटू द रूम। तो नीचे भी हो सकता है, ऊपर भी हो सकता है। यस मैम। बट ये बहुत एक्सपेंसिव सिस्टम होता है, अननेसेसरीली एक्सपेंसिव होता है, इसलिए इसको सिर्फ बड़े थिएटर्स, ऑफिसेस वगैरह के लिए यूज़ होता है। और बट अब तो एयर कंडीशनर्स होते हैं तो नॉट इवन दैट। ओके मैम। ओके, क्लियर ना? एंड मैम एक क्वेश्चन ये पूछना था कि हाँ। जैसे हम लोग वॉशरूम एंड बाथरूम होता है उसकी हाइट कम होती है एंड देन जो उसके ऊपर का स्पेस, मतलब जो हमारा जो स्लैब लेवल एंड उसके ऊपर का जो गैप बचता है, तो मैम जैसे कि वॉशरूम एंड बाथरूम का मिला के इट्स 11 फीट लॉन्ग एंड 6 फीट वाइड है, तो मैम उस पे हम लोग ऐसे जो चाइल्ड्स का बेड होता है, फ्लोर बेड टाइप्स, वो प्रोवाइड कर सकते हैं वॉशरूम एंड उसके ऊपर, मतलब हाँ? कि नहीं प्रोवाइड करना चाहिए? ओह, मतलब नहीं क्या वॉशरूम के ऊपर बेड? मीन्स मैम वॉशरूम एंड बाथरूम का हमारा जो पूरी लेंथ है वो 11 फीट हाँ। एंड 6 फीट वाइड है। हाँ। उसकी हाइट हमारी 8 फीट लॉन्ग 7 फीट लॉन्ग होती है एंड जो हमारा स्लैब लेवल है वो एटलीस्ट ऐसी 13-14 फीट है, तो 7 एंड 14 फीट मतलब हमारा 7 फीट का बच रहा है। तो जैसे हम लोग कैबिनेट वगैरह दे देते हैं। अच्छा, इतना क्यों बच रहा है? कहाँ की बात कर रहे हो? मैम हम तो ऐसे एग्जाम्पल ले रहे हैं। नहीं, अगर जैसे देखो स्लैब टॉयलेट की हाइट कम जनरली इसलिए होती है क्योंकि देयर इज अ जो आपने ट्रैप्स पढ़े हैं, राइट? ट्रैप पढ़े हैं? ये ट्रैप्स और जो हम लोगों ने सैनिटेशन में पढ़ा है, वाटर वेस्ट वाटर डिस्पोजल सिस्टम, जो सैनिटरी सिस्टम्स होते हैं वो सब फ्लोर में से जाते हैं, राइट? तो ये जो 100 mm के 75 mm के पाइप्स हैं एंड जो ट्रैप है जो कि फ्लोर के अंदर जाता है, वो दैट टेक्स अप एटलीस्ट 1.5 फीट जितनी जगह। हमें उतनी डेप्थ प्रोवाइड करनी होती है जिसमें से पाइप्स जा रहे होते हैं। इसलिए हमें ऐसा लगता है कि सीलिंग बहुत लो है, पर उस फ्लोर लेवल और नीचे वाले स्लैब के बीच में काफ़ी कुछ चीज़ें अकोमोडेट कर रहे होते हैं। एंड ऐसा कभी नहीं होगा कि यू हैव आपके टॉयलेट की हाइट 8 फीट ही है एंड आपके जो स्लैब हाइट है वो घर की 14 फीट है। दैट इज़ टू मच। 14 फीट होती भी नहीं है, 11 फीट, 11.5 फीट, मे बी 12 फीट होगी अगर अच्छे से लग्जूरियसली बना रहे हो बिना कुछ
वो एडजस्टमेंट करके 12 फीट जनरली, एंड हमें टॉयलेट की हाइट कम से कम 8.5 फीट, एक्चुअली 9 फीट तक देनी चाहिए हमें। टॉयलेट की हाइट अननेसेसरीली नहीं कम करनी होती, वो 1.5 फीट जैसा, 1 फीट 1.5 फीट डिपेंडिंग ऑन जितना भी आप दे रहे हो। संक स्लैब कहते हैं उसको, संकन स्लैब या संक स्लैब बोलते हैं उसे। वो दिया जाता है, एंड जो भी रिमेनिंग होता है यू लीव इट टू द, वो उतना वॉशरूम में छोड़ सकते हैं या लॉक दे सकते हैं। अदरवाइज फिर फॉल सीलिंग आएगी तो और ज़्यादा लो हो जाएगा। फॉल सीलिंग देते हैं कभी कभी। बट मैम इन सब चीजों को एक्सपेक्ट करके कि हाँ मतलब हम ऐसा मान रहे हैं कि हमारा ऐसे 5 फीट तो बच ही रहा है वॉशरूम के ऊपर एंड स्लैब लेवल के बीच में, हाँ हाँ देन वी कैन प्रोवाइड, हाँ ऐसे वो जो उन लोग का फ्लोर बेड टाइप्स होता है जो स्टेयर्स अच्छा ऐसे जो जस्ट पड़ा होता है। अच्छा जो टाइनी होम्स में होता है हाँ छोटे, यस मैम, यस मैम। उसके अगर हम नींद में खड़े हो गए तो सिर फूट जाएगा वैसा। हाँ यस मैम बट It makes me nauseous looking at it. दे सकते हैं, but you have to get used to it. I wouldn't. I would definitely hurt my head every single time. बट हाँ दे सकते हैं, अगर 5 फीट की जगह है तो इट्स ऐसा कि आप उसमें झुक के जा सकते हो, क्रॉल करके जा सकते हो। हाँ यस मैम। ओके एंड मैम, Anything? हाँ हाँ यस मैम ये हो गया। हाँ, नहीं कुछ आप पूछ रहे थे। यस मैम, एक पूछना था हमारा डिको इज पेंट और मटेरियल। डेको पेंट होता है, इस वक्त स्प्रे पेंट। स्प्रे पेंट होता है, मीन्स हम लोग जो प्लाई एंड वुड्स वगैरह पे कर सके। पीवीसी पे। डेको पेंट इज बेसिकली डेकोरेटिव पेंट, इट्स अ शॉर्ट फॉर डेकोरेटिव। वो स्प्रे पेंट कर देते हैं, टेक्सचर बना देते हैं, उस टाइप की चीज़ों के लिए यूज़ हो सकता है, या हाई ग्लॉस फिनिश के लिए यूज़ होता है। उससे हाँ वो प्रोफेशनल फिनिश आ जाती है, ऐसा लगता है लैमिनेट लगा है पर लैमिनेट होता नहीं है, या लैमिनेट पे कलर कर सकते हैं। इट्स अ यस मैम, हम प्रोडक्ट। लोग ऐसे इसकी पैनलिंग वगैरह भी यूज कर सकते हैं, मीन्स प्लाई के ऊपर ही होता है, वुड के ऊपर हाँ कर तो सकते यूज। हैं। यस मैम, एंड मैम एक्रिलिक भी इट्स अ पेंट और मटेरियल। इट्स अ पेंट, इट्स अ डेको ओके पेंट। डेको पेंट करके सर्च करोगे तो यू विल फाइंड इट, एशियन पेंट्स, ड्यूको, इस तरह का नो नो आता है। मैम, एक्रिलिक, सॉरी। एक्रिलिक, ACRYLIC। एक्रेलिक। यस मैम। एक्रेलिक पेंट। नहीं, डेको पेंट तो एक तरह का प्रोडक्ट है, एक्रेलिक पेंट एक तरह का पेंट है। एक्रेलिक पेंट हम लोग पेंटिंग भी बनाते हैं, उससे हम मेटल भी पेंट कर सकते हैं, वुड भी पेंट कर सकते हैं। सिंथेटिक, एक तरह का सिंथेटिक पेंट होता है जो वाटर बेस्ड होता है, तो वो पानी में मिक्स करके कर सकते हैं उसे, और उससे ग्लॉसी फिनिश आ जाती है, पर उतनी ग्लॉसी, हाई ग्लॉस नहीं होती, जस्ट नॉर्मली शाइनी टाइप। ओके मैम, थैंक यू। ओके, ओके देन, थैंक यू।